અને મુસ્તાક્ષર વિદ્યા સંકુલ. પીપળિયા રાજ હાઈસ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ સાહેબ માથકિયા સાહેબને પણ વિનંતી છે સાથે જોડાવા. આવી જાઓ સાહેબ. મુસ્તાક સાહેબ, આભાર. માથકિયા સાહેબ, આભાર સાહેબ. મિત્રો, આપણા સૌનું સૌભાગ્ય કહેવાય. આપણને સૌને આનંદ થવો જોઈએ, એક ગર્વ થવું જોઈએ કે કેશવા ગ્રુપ દ્વારા સમયે સમયે જરૂરી માર્ગદર્શન માટેના સેમિનારો આયોજિત કરવામાં આવે છે. માત્ર આપની યાદ માટે કહીએ કે ગત 2023માં પણ યુપીએસસી જીપીએસસી માર્ગદર્શન સેમિનારનું આયોજન આ ગ્રુપ દ્વારા થયું હતું. એના સિવાયની ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ છે થાય છે. આજે આપણા સૌની વચ્ચે આપણને માર્ગદર્શન આપવા માટે સલમાન પેટીવાલા સાહેબ, જે આઈઆઈટી ગોલ્ડ મેડાલિસ્ટ છે, તેમને આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત રાખ્યા છે. તેમના વિશેષ પરિચય આપવા માટે હું આ ટીમના સભ્ય શ્રી મુદ્દેસર સાહેબને વિનંતી કરીશ કે સાહેબ વિશેનો વિશેષ પરિચય આપણી સમક્ષ રજૂ કરશે. મુદ્દેસર સાહેબ. બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ. અસ્સલામુ અલૈકુમ. આજના આપણા મુખ્ય મહેમાન સલમાન પેટીવાલા સાહેબ, મને જેને બોલવાને કાબિલ બનાવ્યો છે એવા અમારા ગુરુજનો, શિક્ષણ સાથે વર્ષોથી કામ કરી રહેલા મહાનુભાવો અને અહીંયા આવેલા તમામ જાગૃત વાલીઓ. હું જાગૃત શબ્દ એડ કરું છું એટલા માટે કે જે અહીંયા આવ્યા છે એ બીજા કરતાં વિશેષ છે અને આવનારા દિવસોમાં વાંકાનેરનું, ગુજરાતનું કે દેશનું પ્રભુત્વ કરવાના છે અને જેની કમાન સંભાળવાના છે એવા આપણા વિદ્યાર્થી ભાઈઓ અને બહેનો. સલમાન પેટીવાલા સાહેબની હું વાત કરું તો એમનું બેઝિક શિક્ષણ મુંબઈથી પૂર્ણ કર્યા બાદ, ધોરણ 1 થી 12નો અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યા બાદ એમ કહી શકાય કે વિશ્વની શિક્ષણવિદો દ્વારા કહેવામાં આવે છે કે જેડબલઈ એડવાન્સ, જેડબલઈ મેન્સ પૂરી થાય પછી જેડબલઈ એડવાન્સ આપી શકીએ. વિશ્વની બીજા નંબરની સૌથી કઠિન અથવા તો ટફેસ્ટ એક્ઝામ ક્લિયર કરી આઈઆઈટી મદ્રાસમાં મિકેનિકલ એન્જિનિયર તરીકે એમણે પોતાનું એડમિશન લીધું અને ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ સાથે એ પૂર્ણ કર્યું. ત્યારબાદ તેઓ જીઈ એરોસ્પેસ અમેરિકામાં એડવાન્સ લીડ ડિઝાઇન ઇજનેર તરીકે કામ કરી ચૂક્યા છે. એમાઇરેટ્સ, બ્રિટિશ એરવેઝ જેવી વિશ્વ પ્રસિદ્ધ સંસ્થાઓને ટેકનિકલ સપોર્ટ આપી ચૂક્યા છે. છેલ્લા 5 વર્ષથી લગભગ વિદ્યાર્થીઓ સાથે ટેકનિકલી અને મોટિવેશન સાથે અને ઇસ્લામિક કલ્ચરના દાયરાની સાથે લગભગ 10,000 કરતાં વધુ વિદ્યાર્થીઓ સાથે સંવાદ કરી ચૂક્યા છે. તેમને ટેકનિકલ સપોર્ટ અને મોટિવેશન આપી ચૂક્યા છે. એસડીઆઈ ઇન્ડિયા ઉમ્મીદ પ્રોગ્રામના કી પર્સન પણ છે અને લગભગ ઘણા સમયથી એ એસડીઆઈ ઇન્ડિયાની અંદર પણ કામ કરી રહ્યા છે અને છેલ્લા 2 દિવસથી કન્ટિન્યુઅસ ટ્રાવેલિંગ કરીને કાલે રાત્રે લગભગ 3 વાગ્યાની આસપાસ એ વાંકાનેર પહોંચ્યા હતા. આરામ કર્યા વગર આપણી સમક્ષ ઊભા છે. આ આઈઆઈટી ગોલ્ડ મેડાલિસ્ટનું ડેડિકેશન જ અહીંયા બેસાડી શકે. આવી જ રીતે આગળ તેમનું ઇસ્લામિક માહોલ અને ઇસ્લામ સાથેનું કન્ટિન્યુઅસ જોડાણ ક્યારેય ચૂક્યું નથી. આઈઆઈટી ગોલ્ડ મેડાલિસ્ટની સાથે સાથે ઇસ્લામિક કલ્ચર સાથે પણ સંપૂર્ણપણે જોડાયેલા છે. તો આપણી માટે બહુ જ ખુશીનો સમાચાર કહેવાય કે આવા સરસ મજાના વક્તા આપણી વચ્ચે છે. થેન્ક યુ. વધારે નહીં કહેતા. થેન્ક યુ સલમાન પેટીવાલા સાહેબ. થેન્ક યુ સાહેબ. મિત્રો, સાહેબે જેનો પરિચય રજૂ કર્યો છે એ સાંભળતા જ આપણને એવું થાય કે આજે આપણે ખૂબ મહત્વના અને અગત્યના કાર્યક્રમના
ભાગીદાર થયા છીએ. કોઈ પણ વ્યક્તિ, કોઈ પણ સમુદાય કે કોઈ પણ સંસ્થાના વિકાસની સાચી દિશા છે એનું યોગ્ય માર્ગદર્શન હોય છે. જો માર્ગદર્શન જ યોગ્ય હોય તો પછી સફળતા મેળવવા માટેની મહેનત એ સાર્થક નીવડે છે. વધુ સમય ન લેતા જેમને સાંભળવા એક ગૌરવ છે, જેમનું માર્ગદર્શન આપણા માટે સફળ સાબિત થવાનું છે, એવા સલમાન પેટીવાલા સાહેબ આઈઆઈટી ગોલ્ડ મેડાલિસ્ટ છે, તેમને હું સ્ટેજ પર રજૂ કરું છું. એમના માટે એટલું જ કહી શકાય કે કદમ દર કદમ ચલો એસે કે નિશાન બન જાએ, કદમ દર કદમ ચલો એસે કે નિશાન બન જાए, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, जिंदगी तो सब काट लेते हैं मगर जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए. सलमान साहब, आप आइए और हमें आपकी नूरानी भाषा से रोशन कीजिए. બેઠક વ્યવસ્થામાં ભાઈઓને વિનંતી છે કે થોડાક આગળ ખસીને બેસીશું આપણે. ખૂબ વિશાળ હોલ આપણી માટે આયોજિત થયો છે. अस्सलामुअलैकुम। रहमतुल्लाहि बरकातहू. फिर से कोशिश करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू. एक बार और कर लेता हूँ ताकि थोड़ी आप में और एनर्जी आ जाए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू. सब नाश्ता करके आए हैं ना? हाँ, हिंदी समझ में आती है सबको? हाँ, क्योंकि मुझे गुजराती समझ में आती है पर मैं बोल नहीं सकता, तो मैं हिंदी में ही बात करूंगा। पर हिंदी आप सबको, बच्चों को समझ में आती है, बड़ों को तो आती होगी, बच्चों को भी आती है? हिंदी समझते, उर्दू, इंग्लिश सब समझते? अच्छा, तो बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर हमारी तो छुट्टी चालू है। छुट्टी है ना? गर्मी की छुट्टी है गुजरात में। स्कूल है कि खत्म हो गई? खत्म हो गई, मतलब वापस तो जाओगे ना? हाँ, मतलब वापस छुट्टी मिली है। खत्म हो गई मतलब ये नहीं कि अभी तो आराम है, नहीं। गर्मी की छुट्टी पड़ी। कितने दिन की होती है गर्मी की छुट्टी? 2 महीने। खुली कब स्कूल? जून के मई में? हाँ, 35 डेज। अरे बाप रे बाप। तो 35 डेज और छुट्टी मतलब स्टार्ट होगी फिर से जून में इंशाल्लाह, कि मई में? जून में। तो मई आराम है, आराम है ना? चलो बोलो बोलो, सुनना चाहता हूँ। सुबह अभी आपने बोला नाश्ता करके आए हैं, सब नाश्ता करके आए। हाँ, तो पूरा जून क्या करना है हमें? आराम करना है? नहीं, ठीक है। जून या सॉरी पूरा मई अब छुट्टी मनाना है। पर आप ये सोचोगे कि सर पूरा साल तो हम लोग पढ़ाई करते हैं, राइट? जून में जब स्कूल शुरू होगी तो फिर चलते रहेगी चलते रहेगी। गर्मी की छुट्टी फिर अगले साल आएगी, बराबर? अब मान मुश्किल से छुट्टी मिली थी, उसमें भी यहाँ पर सुबह सुबह, वो भी सैटरडे का दिन हमें बुला लिया,
बराबर? नहीं, ऐसा नहीं सोच रहा है कोई। मेरे को तो लगा आप लोग सोच रहे हो कि जबरदस्ती पकड़ के लेके आ गए हमें सैटरडे को सुबह इधर। अच्छा, मैं कहीं सो रहा होता घर पे आराम से। गुजरात में बोलूं तो सैटरडे तो जलसा का दिन होता है, बराबर? बराबर, बच्चे को मालूम है। हाँ, मुझे नहीं मालूम। मैं एक स्टूडेंट को पूछता था, सर बेटा सैटरडे को क्या करते हो? तो बोले जलसा करते हैं सैटरडे। अब वो क्या जलसा है वो आप जानते हो, पर आप सोचते होगे सर के, एक काम करता हूँ मैं आगे आ जाता हूँ कि सैटरडे का दिन था, आपने सर हमें बुला लिया। पर मैं आपको बताता हूँ एक बात, आज जो आप यहाँ पर आए हो ना, वो मेरे लिए नहीं आए हो, ये किस्वा ग्रुप के लिए नहीं आए हो। आज आप जो आए हो ना, वो अपने खुद के लिए आए हो। और मैं पेरेंट्स को कहूंगा कि आप आज यहाँ आए हो ना, आप अपने बच्चों के लिए आए हो। क्यों? क्योंकि ये बच्चे हमारे वाकानेर का, हमारे गुजरात का, हमारे हिंदुस्तान का एक उज्जवल भविष्य है। कहो इंशाअल्लाह। हाँ, थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन कर लूं। आपने टॉपिक देखा होगा, मुझे गुजराती तो थोड़ी थोड़ी पढ़ने आती है, समझने में बहुत थोड़ी थोड़ी आती है, पर मैंने इंग्लिश में कुछ वर्ड्स लिखे। मैं जानता हूं आप में से 10th वाले भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अभी 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट की, 12th वाले भी बच्चे हैं, उससे छोटी स्टैंडर्ड वाले भी है, बड़ी स्टैंडर्ड वाले भी है। तो मुझे आज सबको एक साथ केटर करना है। पर मैं आपको एक बात बताऊं आज के सेशन के बारे में, आपको अपने आप को रेडी करना है अपने फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस के लिए। ठीक है, स्लाइड्स आती रहेगी, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप यहां मेरी सुने। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूं, पर चलिए बच्चों पे जाने से पहले मैं थोड़ा बड़ों से बात करता हूं। आप लोग जब बहुत छोटे हो गए ना, तो एक फोन आता था पहले जिसका नाम था नोकिया। देखा है आपने? आप लोग ने देखा है? हाँ, वो क्या था उसमें, अगर आपको याद हो, मुझे याद है नया नया फोन आया था, उसमें गेम आता था, स्नेक गेम। देखा था? वो एक सांप होता था, वो जैसा जैसा खाता था सांप बड़ा होता जाता था। देखा है? नहीं देखा है? हाँ देखा है। मुझे बताओ, एक वक्त ऐसा था, चलिए आज से मे बी 10 साल पहले, हर आदमी के हाथ में नोकिया होता था, बराबर? आज किसके पास नोकिया है? किसी के पास नहीं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसके लिए हुआ क्योंकि नोकिया ने उस वक्त एक सीडीएमए करके एक टेक्नोलॉजी आती थी। अब सिर्फ वर्ड दे रहा हूं, याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आ गया है एंड्रॉइड। पता है एंड्रॉइड आपको? हाँ। 10 साल पहले जब सब लोग एंड्रॉइड की तैयारी कर रहे थे, उस वक्त नोकिया ने एंड्रॉइड की तैयारी नहीं की। और 10 साल पहले, ज्यादा दूर की बात नहीं बता रहा, आप लोगों को याद होगा, एक कंपनी जिसका सामान, जिसका माल, मोबाइल सबके हाथ में था, 10 साल में वो कंपनी, अगर मैं वर्ड यूज करूं तो गलत नहीं होगा, बर्बाद हो गई। क्यों बर्बाद हो गई? क्योंकि उसने अपने आप को फ्यूचर के लिए रेडी नहीं किया था। भविष्य, भविष्य कहते हैं ना गुजराती में, भविष्य के लिए उन्होंने अपने आप को तैयार नहीं किया था। कोई और आया, कोई नई चीज आई, कोई मार्केट में नया हो गया, कुछ चेंज हो गया, और अचानक से वो कंपनी रातों रात बर्बाद हो गई। आप एग्जाम्पल समझ रहे हो मैं बोल रहा हूँ? बड़े समझ पाए। अच्छा, उससे पहले, उसके अलावा मेरे को एक और चीज मेरे दिमाग में आ रही है। ये बच्चों ने तो शायद देखा नहीं होगा, बड़ों ने जरूर देखा होगा। एक कैमरा की कंपनी होती थी जिसका नाम था कोडैक। सुना है कोडैक? इन्होंने तो सुना भी नहीं होगा, पर बड़ों को याद होगा। बच्चों, आपको मालूम है अभी अभी आप लोग अगर फोटो निकालना चाहते हो तो मस्त ऐसा लेकर के सेल्फी निकालते हैं, बराबर? खड़े रहे कैमरा के सामने, सेल्फी निकाली, डाली इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम तो सब यूज करते हैं, मैं भी करता हूँ, करते हैं ना? देखो, सब पेरेंट्स सुन रहे तो कोई हाथ नहीं उठाएगा, उठाना भी मत, पर मन ही मन समझते कि इंस्टाग्राम क्या है, स्नैपचैट क्या है, फिल्टर क्या होते हैं, पता है? हाँ, सब पता है, सब पता है, काफी लोगों को पता है। ठीक है, बताने की जरूरत। तो एक कंपनी का दिमाग में मेरे नाम आया, उस कंपनी का नाम था कोडैक। आप लोग को पता है आज से 10 साल पहले, ये 10 साल तो नहीं, 20 साल पहले, अगर आपके पेरेंट्स में से किसी को फोटो खींचनी होती थी ना, तो इतना आसान नहीं था। ऐसा मोबाइल लिए फोटो लिए, इतना आसान नहीं था। एक कैमरा आता था, उसके अंदर रोल आया करता था, एक फोटो खींचे जाता था, और उसमें रोल में फिर लेके जाके कैमरा वाले के पास लेके जाना होता था, जो उसको फिर ब्लैक एंड व्हाइट से साफ करता था,
और कलर फोटो बना के देता था। 10 साल पहले या चलिए 20 साल पहले कोडाक नाम की कंपनी ने, जब सब लोग उस वक्त डिजिटल कैमरा पे जा रहे थे, कोडाक ने बोला नहीं मैं वो पुरानी वाली रील पे रहूंगा। आपने देखा ब्लैक एंड व्हाइट आती थी। 20 साल के बाद आज कोडाक का कोई नाम तक नहीं जानता। ये तो जनरेशन जानती ही नहीं, बड़े शायद जानते होंगे। क्यों कोडाक बर्बाद हो गई, खराब हो गई, खत्म हो गया बिजनेस? क्योंकि उसने अपने आप को क्या किसके लिए रेडी नहीं किया? फ्यूचर के लिए। किसके लिए रेडी नहीं किया? मैं चाहता हूं थोड़ी आपकी आवाज आ जाए। किसके लिए अपने आप की तैयारी करनी है? वापस जोर से बोलो। फ्यूचर। थोड़ी कम आवाज आती है, ठीक है कोई बात नहीं, आने लगेगी। तो अपने आप को फ्यूचर रेडी करना है। आज आपके सामने पूरी दुनिया मौजूद है। कई ऐसे कोर्सेज है जो मौजूद है, आपको शायद उनके बारे में पता नहीं हो। मेरा काम है यहां से आपको उन कोर्सेज के बारे में बताना, उन बिजनेसेस के बारे में बताना, उन टेक्निकल नॉन टेक्निकल चीजों के बारे में बताना, उस चीज के बारे में बताना जो आज आप कर सकते हो, जिससे आपका फ्यूचर अच्छा होगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? किसको इसको समझ रही है जरा हाथ उठाइए। अच्छा, बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही है। वेरी गुड, ठीक। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। दुनिया इतनी तेजी से चेंज हो रही है, जो चीज आज है हो सकता है कल वो चीज हमारे सामने नजर ना आए। फिर से थोड़ा आपको समय इसमें पहले ले जाता हूं। आपके पेरेंट्स ने देखा होगा कि पहले कोई किसी को अगर नाच सुननी होती थी, गाना सुनना होता था, तो कैसेट आया करते थे। ये बच्चों को तो पता भी नहीं होगा कैसेट क्या है। ऐसा गोल गोल उसमें खुदा। अच्छा, उसके बाद शायद इन बच्चों को कैसेट का जमाना गया, अचानक से आया सीडी का जमाना। सीडी देखिए, हाँ, डीवीडी आती थी, लोग उसमें गाने डालते थे या मूवीज डालते थे, कुछ भी डालते थे, पिक्चर डालते थे। उसके बाद जमाना आया पेन ड्राइव का। देखो, सीडी आई तो उसने कैसेट को खत्म कर दिया, पेन ड्राइव आई तो उसने डीवीडी को खत्म कर दिया। अब तो पेन ड्राइव में नहीं है, अगर मेरे को कोई फाइल हमारे जाबिर सर को भेजनी होगी तो मैं क्या करूंगा, सीधा उसको व्हाट्सएप कर दूंगा, राइट। अब पहले कैसेट गई, सीडी आई, सीडी गई, पेन ड्राइव आई। अब पेन ड्राइव से ज्यादा ये जो टेक्नोलॉजी है जो व्हाट्सएप पे यहां से वहां भेजते हैं, इसको बोलते हैं क्लाउड टेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं? क्लाउड मतलब, हाँ, बादल। आपके जहन में है कि क्लाउड टेक्नोलॉजी, पर बादल से उससे कोई लेना देना नहीं है। टेक्नोलॉजी का नाम क्लाउड है। आपने बच्चों ने गूगल ड्राइव यूज किया है? नहीं यूज किया है? गूगल ड्राइव, ईमेल, जीमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ट्विटर तो अभी एक्स हो गया, एक्स। हाँ, ये सब नई नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही है और पुरानी टेक्नोलॉजी को खत्म कर, आज इतना तेज इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है कि कुछ जॉब्स जो आज आपको दिख रहे हैं, कुछ ऐसे काम ऐसा लगता है जो आज करने हैं, वो कुछ साल के बाद खत्म हो जाएंगे। तो क्या वो काम करके मतलब है? पहले है ना बच्चों, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आज से 15 साल पहले देखता था कुछ ऐसे जॉब्स आते थे, फॉर एग्जांपल टाइपराइटिस्ट। सुना है? टाइपराइटर की नौकरी आती थी कि हमें टाइप करके बताना होता था चीजें। आज वो जॉब खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब टाइपराइटर का काम या टाइपिस्ट का काम कोई करता नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, आप उसको स्कैन कर सकते हैं, सामने वाले को सीधा डायरेक्ट भेज दो। पहले टाइपराइटर के जॉब के 20,000 मिलते थे, आज वो जॉब नहीं है। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, आप इनको ले आइए। तो चलिए, आगे जाने से पहले, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपने बैकग्राउंड के बारे में बता दूं। मे बी हम अगर, इफ यू कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड जी। इससे पहले एक और थी स्लाइड शायद, यही है? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, आगे जाइए। ओके, ये ओके, कुछ और था ये, शायद हो सकता है दूसरी फाइल आ गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब फर्स्ट स्लाइड पे रखिए। हाँ, हो सकता है। कितनी स्लाइड्स है इसमें? 12। अच्छा, तो ये पुराना वर्जन चला गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं आपको चाहिए तो नया वर्जन अभी भेज देता हूँ, ठीक है। आप लोग एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए।
सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप देख सकते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, स्लाइड्स पे अगर नहीं भी आए तो। हाँ, ये पॉइंट्स मुझे बताने थे, 9 पॉइंट। अगर आप ભાઈઓમાં આગળ બેસવા વિનંતી છે, अगर अच्छा मेरा मोबाइल ही हो सकता है उसमें कनेक्ट, થોડા तो આગળ मेरा આવી मोबाइल જાઓ। ही कनेक्ट कर दीजिए, बेस्ट। બેઠેલા છો ને એ મિત્રો આગળ આવી જાઓ, પાછળ વ્યવસ્થા થઈ શકે। हो जाएगा मेरा कनेक्ट उस पे, हो जाएगा तो अच्छा। आप लाइट ऑन कर दीजिए, अभी मेरे को प्रेजेंटेशन की अभी जरूरत नहीं, आधे घंटे बाद लगेगी। मुझे प्रेजेंटेशन की अभी जरूरत नहीं, आधे घंटे बाद लगेगी। ठीक है, ठीक है, आप लोग सेटल हो गए, क्योंकि मुझे ऐसे ही लग रहा है पिछले 10 मिनट से आप सेटल हो रहे हैं। ओके, दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, સલાતુ વસ્સલામુ અલૈકા યા રસૂલુલ્લાહ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह સલાતુ વસ્સલામુ અલૈકા યા હબીબ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ। थोड़ा मैं करियर पे जाने से पहले थोड़ा मैं अपना बैकग्राउंड आपको दे दूं, जानना चाहोगे? हाँ, तो मेरा एजुकेशन, मेरा डिग्री जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने अपना बैचलर्स किया। उसके बाद एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में मैंने मेरा मास्टर्स कंप्लीट किया। ठीक है, तो आई हैव अ बैचलर्स डिग्री एज वेल एज मास्टर्स डिग्री। और मेरा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आप कहेंगे, मेरा जो है वो आईआईटी मद्रास से हुआ है। आईआईटी के बारे में आपने सुना है? हाँ, लोग बोलते हैं आईआईटी बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, वहां जाना बहुत मुश्किल। मैं कहता हूं कि आईआईटी जाना सबसे आसान है अगर आप सही टेक्निक लगाते हैं। अब वो क्या टेक्निक है इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मैं जैसा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया, मैंने जब आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम देते तो ऐसे एंट्रेंस एग्जाम में आपको परसेंटेज नहीं, परसेंटाइल की जरूरत होती है। सुना है आपने? तो मेरा जब परसेंटाइल आया था, जब मैंने आईआईटी मद्रास का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, उस वक्त मेरा परसेंटाइल आया था 99.4। ठीक है, સુભાન અલ્લાહ। 99.4 मुझे परसेंटाइल आया था। और उसके बाद मेरा एडमिशन आईआईटी मद्रास में हुआ था। मैं आज जीई नाम की एक कंपनी है, जनरल इलेक्ट्रिक, उसमें काम करता हूँ। और वहां पर मैं एयरक्राफ्ट, आपने प्लेन देखा है? हाँ, प्लेन के अगर आप राइट और लेफ्ट पे देखोगे तो 2 पर होते हैं, उस पर के नीचे एक इंजन लगा होता है। जब वो इंजन घूमता है तो प्लेन ऊपर जाता है। तो मैं उन प्लेन्स के इंजन की डिजाइन करता हूँ। ठीक है, मैं एक अमेरिकन कंपनी के लिए काम करता हूँ, मैं इंडियन कंपनी के लिए नहीं, अमेरिकन कंपनी के लिए काम करता हूँ। मेरी कंपनी का नाम है जनरल इलेक्ट्रिक। और अगर आपको जनरल इलेक्ट्रिक के बारे में आप गूगल कर सकते हैं, घर जा करके इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। पर मेरी कंपनी, हर कंपनी का एक फाउंडर होता है, बराबर? जैसे सुना होगा आपने, अंबानी जो है वो रिलायंस के फाउंडर है, उनकी कंपनी है। मेरी कंपनी के फाउंडर का नाम था थॉमस एडिसन। नाम सुना है आपने? कौन है थॉमस एडिसन? हाँ, उसने क्या किया था? हाँ, ये जो आप देख रहे हैं बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब या लाइट, जो भी आप कहेंगे, इसका इन्वेंशन किया था मेरी कंपनी के फाउंडर ने। ठीक है, तो हम आज से 100 साल पहले इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया गया था, तो मेरी कंपनी का जो मालिक है या फाउंडर, आप जो भी बोल सकते हैं, उन्होंने बनाया था। और उसके बाद अलग अलग टेक्नोलॉजी में हम लोग काम करते गए, और आज हम एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग में काम करते हैं, डिजाइन इंजीनियरिंग में काम करते हैं। कोई बात नहीं, आप इसे रख दीजिए, फिर बीच बीच में डिस्टर्ब होता है, इसके लिए चलेगा चलेगा, बच्चे आ जाएंगे। तो मैं आज जी में काम करता हूं, और आपने देखा होगा मेरे प्रोफाइल में आप यूएसए लिखा है। तो मैं कुछ वक्त इंडिया में रहता हूं, कुछ वक्त अमेरिका में रहता हूं। आप समझ लीजिए इस तरह से, मैं अपने साथियों को भी आते वक्त बोल रहा था कि तकरीबन हर 3 महीने में से 1 महीना मैं अमेरिका में रहता हूँ।
काम की वजह से। ऑफ कोर्स मेरी कंपनी ही पूरा मेरा ट्रांसपोर्टेशन है, वहाँ घर है, वीजा है, खाना पीना है, सब वो लोग ही देखते हैं, क्योंकि मुझे वहां जाके सिर्फ क्या करना है, काम करना है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं फरवरी का पूरा महीना, पहला क्वार्टर आप समझते हैं किसको बोलते हैं? 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मेरा काम ऐसा है कि मुझे ट्रैवल बहुत करना पड़ता है। तो इस बार मैं पूरा फरवरी अमेरिका में था, फिर आया मैं ईद करने के लिए। अब मैं कुछ और दिन इंडिया में हूँ। आज यहाँ वाकानेर में प्रोग्राम है, कल भरूच में है, फिर मुंबई चला जाऊंगा, फिर उसके बाद मैं जून में जर्मनी चला जाऊंगा, तो फिर 1 महीने के लिए। तो मेरा ऐसा ट्रैवल लगा रहता है, ताकि मैं अलग अलग जगह जाऊं ऑफिस के काम के लिए, और अलग अलग जगह जाकर के हम अपने बच्चों को मैं क्या करूं, इंस्पायर करने की कोशिश करूं। ओके, अब मैं आपको बताता हूं, चलिए ये सब तो हो गया, ये तो मेरी बात रही, पर उससे ज्यादा जरूरी बात जो करनी है वो बात आपकी है। किसकी है? हाँ, मेरा करियर तो बन चुका, मैं तो इंजीनियर बन चुका, मैं तो अगर कहेंगे डिजाइन इंजीनियर, प्लेन बनाने वाला बन चुका। पर आपके सामने आज सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आपको क्या बनना है। क्वेश्चन आता है दिमाग में, क्या करना है? कोई सोचता है, अच्छा मैं एक बच्चे से मिला, वो इतना कंफ्यूज था कि उसको सुबह इंजीनियर बनना होता था, शाम में एडवोकेट बनना होता था, रात को डॉक्टर बनना होता था। ठीक है, एक बच्चा मेरे पास आया, बड़ा मजेदार किस्सा है, जाबिर सर। बच्चा आया, हाँ अच्छा मैं ब्लॉक कर रहा हूँ उसको। बच्चा आया, बोले सर मेरे को है ना डॉक्टर और इंजीनियर एक साथ बनना है, बन जाऊं क्या? बन पाएगा? मैं बोला बेटा ऐसा कैसा चलेगा? अच्छा, और एक बात समझो, ये करियर सिलेक्शन है ना, अगर मैं पता नहीं गुजराती में क्या कहते हैं, हमारे हिंदी में उसको चुड़ैल कहते हैं। क्या कहते हैं? चुड़ैल। चुड़ैल सुना है? मतलब क्या है चुड़ैल का? गुजराती में क्या बोलते हैं? अच्छा ऐसे कुछ बोल, चुड़ैल ही बोलते हैं, समझते हैं। पता नहीं, पहले है ना उसका हम कहानी सुनते थे कि देखो अंधेरी रात में पीपल के पेड़ के नीचे क्या रहती है? हाँ, लोग बोलते हैं कि उसके पैर ऐसे कह रहते, टेढ़े रहते, सुने? पीछे की तरफ रहते, उल्टा से। अच्छा, मैं आज तक सोचता हूँ जब उसके पैर टेढ़े रहते तो चलती सीधा कैसे है? ठीक है, लोगों ने कहीं किसी ने देखा होगा तो होगा, पर लोग कहते हैं कि अंधेरी रात में पीपल के पेड़ के नीचे जाना नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उस पर चुड़ैल रहती है। एक बार आपको चुड़ैल ने पकड़ लिया तो पूरी जिंदगी वो चुड़ैल क्या करेगी? आपको पकड़ ली। बच्चों यही बात है। अच्छा हो गया कनेक्ट, फैंटास्टिक सर। यही बात है करियर को लेकर के। करियर में भी सेम चीज है। एक बार आपको करियर नाम की चुड़ैल ने एक बार पकड़ लिया तो वो आपके साथ पूरी जिंदगी रहेगी। आप उस पर ध्यान मत दें, अब मेरी सुने, हम उस पर आधे घंटे के बाद आएंगे। एक एग्जाम्पल देता हूं, आर्ट्स नाम की चुड़ैल ने आपको पकड़ लिया। कौन से नाम की? पूरी जिंदगी आर्ट्स करना पड़ेगा। साइंस की चुड़ैल ने पकड़ा तो जिंदगी भर, कॉमर्स ने पकड़ा तो। कोई ऐसा होगा कि भाई अगर सोचेगा कि आज मैं इंजीनियर बन जाता हूं, कल डॉक्टर बनूंगा तो काम चलने वाला। हमारे जाबिर सर, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये क्या टीचर है, बराबर क्या करते हैं? टीचिंग करते हैं। कल से जाबिर सर बोलेंगे मैं डॉक्टर बनता हूं, चलेगा? वांकानेर में नजदीक रहते हैं माशाल्लाह, अच्छे आदमी हमारे सर भी बैठे, इंजीनियर है वो भी। कल से वो बोलेंगे कि मैं इंजीनियर, आज तक इंजीनियर था, मिसाल के तौर पर इनकी एज 30 ईयर्स है, चलो 30 साल से इंजीनियर हूं, कल से मैं डॉक्टर बन के पूरे वाकानेर को गोलियां दवाई दूंगा। जाओगे इनके पास? अरे बहुत नेक आदमी है यार, ले लो ना गोली, ले लो इनसे। नहीं लोगे? बोलेंगे नहीं सर, अच्छे आदमी हो, रहने दो, हम भरोसा करने वाले, तबीयत खराब होगी तो इनके पास जाने वाले। अरे मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, कल है ना मैं ना देखो अभी तक इंजीनियर हुआ, ठीक है, या चलो मैं टीचर हूँ, कल इनको शौक आया प्लेन उड़ाने का, कल जाके ये राजकोट एयरपोर्ट पे जाके प्लेन उड़ाएंगे, बैठोगे इनके साथ में? नहीं। क्यों नहीं बैठोगे? अरे बहुत नेक आदमी है, नमाज भी पढ़ते हैं। नहीं बैठोगे? फिर भी क्यों नहीं बैठोगे? बोलेंगे नहीं सर, इनको प्लेन उड़ाने आता वाता होगा नहीं, हमारी जान पे खतरा है। क्या है? हाँ। क्यों? क्योंकि आपका जवाब होगा सर ये बहुत अच्छे टीचर है, ये टीचिंग में ट्रेन है, पर प्लेन उड़ाने में ट्रेन नहीं। अच्छा,
अब आपका सवाल का जवाब मैं दूं, या आपके जहन में जो सवाल आ रहा है, इसका ये मतलब है इंसान जिंदगी में कोई करियर एक बार जब वो चुन लेता है तो वो करियर के साथ उसे अपनी पूरी जिंदगी बितानी पड़ती। बड़े लोग जानते हैं शादी में भी ऐसा ही होता है, एक बार बीवी चुन ली, अब जैसी है उसको पूरी जिंदगी भर निभानी पड़ती है, फिर उसके बाद मौका हो गई, शादी हो गई। अच्छा, जब शादी नहीं हुई थी ना तो घर वाले पूछते, आप लोग की भी उम्र आएगी, घर वाले बोलते देख बेटा सोच समझ के कर रहा है कि नहीं शादी, बराबर। पर एक बार जब शादी हो गई तो अब जैसी भी है निभानी पड़ेगी। करियर के साथ में भी ऐसा है, जो सोचना है आज सोच लो, क्या बनना है आपको, लॉयर बनना है, सीए बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, जो सोचना है आज सोच लो। एक बार आपने करियर चूज कर लिया, उसके बाद सोचने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। एक और बेटा मैं आपको बात बताऊं, बच्चों बात बताऊं मेरे एक दोस्त है जो इंजीनियरिंग कर रहे थे, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर हो गया। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 3 साल इंजीनियरिंग, टोटल कितने साल की होती है, 4 साल, 3 साल इंजीनियरिंग करने के बाद उनको ऐसा लगा कि मैं इंजीनियर बनने के काबिल नहीं हूं। 3 साल माँ बाप का हर साल की 1 लाख रुपए की फीस होती है, इतना पैसा वेस्ट करने के बाद, ठीक है पैसा तो छोड़ दो, 3 साल का वक्त वेस्ट करने के बाद अगर आपको लगे कि आप इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, तो इसका मतलब आपने अपना वक्त भी वेस्ट किया और आपने अपने पेरेंट्स के पैसे भी वेस्ट किए, बराबर। गलत तो नहीं कह रहा, ठीक हो गया अभी सब, ओके। आइए आइए आज, और डिस्टर्ब नहीं, डिस्टर्ब हो रहा था इसके लिए, आज कोई बात नहीं, अभी तो यहाँ फुल हो गया है ना, ओके ठीक है। चलिए, तो मैं आपको करियर के बारे में बताता हूं, रेडी। हाँ बंद कर दीजिए सर इसको, कोई टेंशन नहीं, इसको बंद कर दीजिए ऐसे। आप लोग सब सेटल हो गए पक्का। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बात, माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ यार, आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि इतने अच्छा इंग्लिश थोड़ी थोड़ी तो समझते हो ना आप लोग, यू कैन अंडरस्टैंड राइट, क्योंकि हम बड़े बड़े ड्रीम्स देख रहे हैं, हम छोटे ड्रीम्स देखने वाले लोग। अब कहीं जाना है बाहर, देखो मैं सर से बात कर रहा था, सर मुझे कह रहे थे कि आप इनको बताए कि वाकानेर के बाहर, या अगर मैं कहूँ नजदीक में राजकोट है, राजकोट के बाहर, गुजरात के बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। क्या है, बहुत बड़ी दुनिया है। मैं आपको एक काम करता हूँ, एक वीडियो से स्टार्ट करता हूँ। आप कोई भी वीडियो प्ले कीजिए, वीडियो देखोगे, हाँ चाहिए तो लाइट्स थोड़ी सी डिम कर सकते हैं, 2-3 लाइट्स बंद कर सकते हैं। चलिए एक वीडियो देखते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बच्चे आ रहे जा रहे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। तो आइए वीडियो से स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। હલો મિત્રો, અહીં સ્ટેજની બાજુમાં આગળ જગ્યા છે, ત્યાં આવેલા મિત્રો પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરો. વારંવાર વ્યવસ્થા ડિસ્ટર્બ ન કરવા વિનંતી છે. બેઠેલા મિત્રો સાયલન્ટ મોડમાં રહેશે. મિત્રો આપણે વ્યવસ્થાને સહકાર આપીશું. સ્ટેજની બાજુમાં પણ જગ્યા છે ત્યાં. ઓકે, બીજા મિત્રો આપણે હવે અવાજ નહીં કરીએ, વ્યવસ્થા પૂરી થઈ ગઈ છે. हेलो। चलिए ઓકે, આપણે આપણો પોતાનો અવાજ બંધ કરીશું.
મિત્રો સાહેબે આપણને એમનો પણ પરિચય આપ્યો. ખૂબ વ્યસ્ત સમયની વચ્ચે આપણને માર્ગદર્શન આપવા અત્રે ઉપસ્થિત રહ્યા છે, એટલે આપણો સહકાર હોવો એ ખૂબ જરૂરી છે. ओके साहब कंटिन्यू. अभी हम दरवाजों को कर देंगे बंद, ठीक है? अब कोई अंदर आने वाला नहीं, ठीक है? कर दीजिए बंद. अगर कोई आता है तो पीछे बैठ जाए. ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी कि माशाल्लाह इतना सारे लोग, इतने सारे बच्चे शुरू हो गए. जब मैं स्टार्ट किया था आई थिंक सिर्फ 20% थे, पर अब और बढ़ते गए. और आइए फॉर द इंटरेस्ट ऑफ टाइम जितने लोग बैठे थे, हम बात कर रहे हैं किसकी? फ्यूचर की, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं एंड लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि पहला वीडियो मैं आपको फ्यूचर का दिखाना चाहता हूं, जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी. कौन सी टेक्नोलॉजी? ड्रोन टेक्नोलॉजी, ठीक है? आप एक देख रहे हो, एक छोटा फोटो चल रही है वहां पर, और मैं एक काम करता हूं, इस वीडियो को अभी प्ले कर ही देता हूं आपके लिए, ठीक है? ताकि आप ये चीज समझ सको ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या है. ओके, रेडी? फ्यूचर में चलना चाहोगे? हाँ की थोड़ी आवाज जोर से आ जाए तो जल्दी चलेंगे फ्यूचर में. फ्यूचर में चलना चाहोगे? हाँ, तो चलिए देखते हैं आपका फ्यूचर, हमारा फ्यूचर कैसा होगा. Gone is the time when drones were only used for aerial videography. The latest drones encompass a larger bandwidth, spanning various sectors. With India looking at rupees 5,000 crore investment in creation of 10,000 jobs, the future of drones looks exciting. Here are the top 5 sectors for drone technology. Agriculture. Drones help increase farm outputs by improving the quality of management, surveillance, and mapping of farm fields. Drones can also be used to assess health of crops, spray accurate doses of fertilizers and pesticides, and reduce the risk of hazards to farmers. Defense. Extremely crucial to defense sector. Drones can be used to guard borders, deliver essentials, and map territories. In an event of war, combat drones can also plan and conduct attacks. Construction. From mapping to assessing the progress of construction projects, drones deliver a variety of use cases in the construction sector. Land development and planning. Benefit of having a bird's eye view. Drones can assess land development in almost any given area. They can be used to map lands and collect crucial data. This helps in resolving legal border maps, land disputes, and other property rights. Mining. Surveying mining lands is a tedious process, and drones make it simple. Drones can track resource inventory, travel into the dangerous mining area, and map excavation routes with LiDAR. जी, मे बी वी कैन पुट द लाइट्स ऑन. आप लाइट ऑन कर दें, सभी लाइट ऑन. जी, आपने क्या देखा? कौन मुझे बताएगा? कम ऑन, मैं चाहता हूं अब आप में से कोई समझाए. जी जी सर, आप बता सकते हैं क्या था इस वीडियो में? हाँ, बिल्कुल सही. मैंने ये वीडियो क्यों दिखाया? अब देख रहे इंडिया पाकिस्तान का इस वक्त वॉर जैसी सिचुएशन चालू है, पता है आपको? हाँ, हम अपने देश के साथ है, देश की सेना के साथ है ना? हाँ, हम अपने देश की सेना के साथ है. हम चाहते हैं हमारी सेना जो भी दुश्मन मुल्क है हमारा, उनसे हमारी हिफाजत करे, बिल्कुल करे. पर पहले के जमाने में हिफाजत अलग तरह से होती थी. पहले हमारी, अगर 100 साल पहले चले जाए तो जो भी योद्धा होते थे वो तलवार लेके निकलते थे. आज जंग के मैदान में कोई तलवार लेके निकलेगा तो क्या वो जीत सकेगा? मैं ऐसा पाकिस्तान के सामने ऐसा कोई जाए ऐसा तलवार लेके आओ तो वहां से बम ही फेंकेंगे. क्या करोगे तलवार का? बराबर. आज के जमाने में देखो हर चीज टेक्नोलॉजी हो चुकी है, यहां तक कि जंग भी हो चुकी है. किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से. आज जंग वो जीतेगा. पहले देखो, ध्यान से सुनो, 100 साल पहले, 200 साल पहले जंग वो जीतता था जिसके पास घोड़े ज्यादा होते थे, सैनिक ज्यादा होते थे, हाथी ज्यादा होते थे.
आज जंग वो जीतेगा या दुनिया पे राज वो करेगा जिसके पास सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी है। क्या है? ड्रोन का हमने वीडियो देखा कल। आपने न्यूज में, पता नहीं आप न्यूज सुनते कि नहीं, आपके फादर मदर न्यूज सुनते कि नहीं, पर आपने देखा होगा पाकिस्तान ने हम पर 300 ड्रोन भेजे। यही ड्रोन जो मैंने आपको दिखा, पढ़ा था न्यूज़पेपर में कहीं, हमारे जो भी अटैक करने के लिए उन्होंने 300 ड्रोन भेजे। पर इंडिया वालों के पास एक ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी है S-400, जो सामने से ड्रोन आता है ना, तो उसको यहां से अपनी मिसाइल जाकर के उसको क्या कर देती है? उड़ा देती है। इसको बोलते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल टेक्नोलॉजी। वहां से वो ड्रोन भेज रहे हैं, पर हम यहां से उनके ड्रोन आने से पहले ही, अगर आपने देखा होगा न्यूज में पढ़ा होगा, भुज यहां से नजदीक है, बॉर्डर से वो लोग उस तरफ ड्रोन के अंदर बॉम्ब डाल के भेज रहे हैं, पर वो यहां आने से पहले ही हम उन्हें क्या कर देते हैं? उड़ा देते। आज अगर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं होती तो कोई भी देश, बगल वाला देश, कहीं का भी देश ड्रोन के थ्रू हमें बॉम्ब हमारे तक भेज सकता था। पर ये टेक्नोलॉजी है जो हमें हेल्प कर रही है सबसे क्या बढ़ने के लिए, सबसे आगे बढ़ने। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। हमारे देश को मिसाइल हमारे मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम ने दी, राइट? मिसाइल्स दी, टेक्नोलॉजी दी। क्या हम चाहते हैं कि अगला मिसाइल मैन हमारे वाकानेर से हो? बोलो इंशाल्लाह। अगला मिसाइल विमेन हमारे हिंदुस्तान से हो, हमारे वाकानेर से हो? बोलो इंशाल्लाह। अब आप बोलोगे सर बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है, ड्रोन है, पता नहीं क्या क्या उड़ रहा है, क्या क्या काम कर रहा है, पर उसके लिए एक छोटी सी प्रॉब्लम है सर, पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? सब होता है हमसे, पर थोड़ा पढ़ाई के मामले में हम अच्छे नहीं। ऐसा नहीं, आपको ये सब चीजें सीखनी होगी, खुद के लिए भी, गुजरात के लिए भी और देश के लिए भी। बोलो इंशाल्लाह। हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान में जो सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी जो डिजाइन करने वाला हो वो हमारा मुसलमान बच्चा हो, वो वाकानेर का बच्चा हो, वो गुजरात का बच्चा हो। वो बच्चा टेक्नोलॉजी इतनी सीख जाए कि उसे कहीं नौकरी मांगने की जरूरत नहीं पड़े, नौकरी खुद चल के आए उसके सामने। तो ये सबसे पहली टेक्नोलॉजी। और आज मैं इंशाल्लाह आपको करियर के बारे में तो बताऊंगा आखिरी आधे घंटे में, पर पहले आपके 20 मिनट में कुछ 9 आपको ऐसी टेक्नोलॉजी बताऊंगा। कितनी? वो 9 टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसमें फ्यूचर में जॉब्स आने वाले हैं, उसमें फ्यूचर में बिजनेस बनने वाला है। अगर आपने 9 में से कोई एक भी सीख ली इंशाल्लाह तो आपका करियर बेस्ट हो जाएगा। आपके पेरेंट्स में पूछूं तो उन्होंने कभी ड्रोन के बारे में सुना होगा? नहीं। पर क्या आप ड्रोन डिजाइन कर सकते हो? बोलो इंशाल्लाह। क्या आप ड्रोन की टेक्नोलॉजी पढ़ोगे? अब ये ड्रोन क्या होता है? आपने तो वीडियो देखा बराबर। मैंने देखा है कई सारी राजकोट की शादियों में, गुजरात में शादियों में भी ये ड्रोन उड़ते हैं, फोटो खींचते हैं, देखा है? हाँ, पर इसका ये काम नहीं है। बहुत सारे काम है इसके, ये काम नहीं। यहाँ खेती होती है क्या? किस चीज की? कॉटन की। अच्छा, मैं आपको बताऊं। अच्छा, अपना जो खेत होते हैं वो कितने, 1 एकड़ के होते हैं? कितने? 1 एकड़, 2 एकड़, 10 एकड़। मैं आपको अमेरिका की खेती के बारे में बताता हूँ। अमेरिका में हर आदमी के पास कम से कम 1000 एकड़ की खेती है। हर आदमी के पास कितनी कितनी एकड़? अच्छा, अब उसमें स्प्रे करना है उनको पेस्टिसाइड। पता है आपको पेस्टिसाइड क्या है? अपने इंडिया में लेकर के ऐसा स्प्रे करते रहते, एक ही झाड़ पे मारते रहते, राइट? अगर बीज बोने हैं, बीज सीड सोइंग क्या कहते हैं? बीज बोना ही कहते हैं। हाँ, तो हम क्या करते हैं? एक ही कैसा सीड डालते रहते हैं, बराबर। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ ठीक है छोटी खेती है, 1 एकड़ में तो इंसान कर, मैं आपको एक आदमी दूं और बोलूं 1000 एकड़ में आज शाम तक बीज डालने, डाल पाओगे? डाल पाओगे? कैसा, मैं बताता हूं। आप नहीं डालोगे, ये ड्रोन आपके लिए डालेगा। अमेरिका में बीज बोने का काम इंसान नहीं करता, कौन करता है? ड्रोन में बीज डाल दिए, छोड़ दिए, वो उड़ता रहेगा और ऊपर से एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक 2 घंटे में, कितने घंटे में? 1000 एकड़ में वो बीज डालने का काम खत्म कर देगा। कौन? ड्रोन।
एक और चीज बताऊं, पेस्टिसाइड स्प्रे करना है इंडिया में तो एक बैठ के आराम से स्प्रे करते रहते हैं, कीटनाशक कहते हैं ना। हाँ, अमेरिका में ऐसा नहीं होता, यूरोप में ऐसा नहीं होता। ड्रोन के अंदर बॉटल होती है, वो बॉटल में स्प्रे लगा दिया, 2 घंटे के अंदर 1000 एकड़ के पूरे फार्म को हमने क्या कर दिया, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड, कीटनाशक जो भी कहते हैं, मार दिया। कैसा मार दिया? कौन सी टेक्नोलॉजी की वजह से? ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो क्या ये आपकी टेक्नोलॉजी सीखना चाहोगे? अच्छा, एक एग्जांपल देता हूं, पता नहीं आपके वाकानेर में या राजकोट में है या नहीं। एक कंपनी है फूड डिलीवरी, जोमैटो है इधर? हाँ है, इधर वाकानेर में भी है? नहीं है, राजकोट में। अच्छा, क्या होती है, कोई बता सकता है? बच्चों में से कोई बता सकता है वो कंपनी क्या करती है? चलो बोलो बाबा, मैं इतना धूप में कब से बोल रहा हूँ, मेरा गला सूख गया। कोई बताएगा मुझे? जोमैटो, स्विगी सुना है? स्विगी, हाँ, क्या होती है बोलो। हाँ, नहीं मालूम? हाँ बोलो बेटा, क्या करती है? फूड डिलीवर करती है। क्या नाम आपका? जीशान। कौन सी, मोहम्मद जीशान, कौन सी स्कूल में हो? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, अच्छा जवाब दिया, वेरी गुड। सब जरा जीशान के लिए ताली बजाओ भाई। हाँ, क्या करती है स्विगी या जोमैटो? फूड डिलीवर करती है। तो अगर मैंने ऑर्डर किया तो क्या होगा? फ्यू मिनट्स में कोई इंसान लाके देगा, बराबर। आपने देखा होगा जोमेटो वाले लाल शर्ट वाला पहनते हैं और लाके देते हैं। गुड जीशान, वेरी गुड, प्लीज सिट डाउन, गुड आंसर। पर आज से, ठीक है, मैं, जीशान ने बताया कि भूख लगी थी, मेरे को खानी थी मस्त चिकन बिरयानी। क्या खानी थी? हाँ, क्यों नहीं खा सकते? खा सकते भाई। जोमेटो से मैंने, फॉर एग्जाम्पल, राजकोट में बैठा था, मैंने ऑर्डर किया, 10 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटे के बाद, अच्छा वो वहां पर मेन्यू भी होता है, प्राइस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यूपीआई से हम पेमेंट भी कर सकते हैं, कैश की जरूरत नहीं। 20 मिनट के बाद कोई बंदा आया बिरयानी लेकर के, और उसने मेरे घर पे ला करके बिरयानी दे दी। ठीक है, मैंने अपनी बिरयानी खा ली। 10 साल के बाद ऐसा नहीं होगा, गारंटी के साथ कहता हूं। 10 साल के बाद, 10 साल के बाद वापस मुझे खानी थी, क्या खानी थी मुझे? चिकन बिरयानी। मैंने जोमेटो पे या स्विगी पे ऑर्डर किया, एक ड्रोन उड़ता उड़ता गया राजकोट में, फॉर एग्जांपल बिस्मिल्ला होटल से मुझे खानी थी, ठीक है, बिस्मिल्ला होटल के पास जाके वो ड्रोन रुका, उस ड्रोन में एक बॉक्स था, वो बॉक्स खुला, वो बिरयानी पकाने वाले ने वो बिरयानी का डब्बा लेकर के उसमें क्या कर दिया, डाल दिया। फिर वो ड्रोन उड़ा, मेरी लोकेशन ऐप पे, जीपीएस पे थी, राइट, उड़ते 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 वो मेरी खिड़की के बाहर आ गया। मैंने, ऐसा नहीं, अभी बिरयानी ऐसे खुलने वाली नहीं है, वरना किसकी बिरयानी कोई भी लेके खा जाएगा, बराबर। वहां पर एक ओटीपी डालना था, ओटीपी पता है आपको? मैंने ओटीपी आप पे जो दिखा रहा था वो डब्बे पे डाला, मस्त डब्बा खुला, गरम गरम बिरयानी आई, मैंने बिरयानी निकाल ली, वो ड्रोन वापस कोई और ऑर्डर पूरा करने के लिए चला। क्या ये होने वाला है? बिल्कुल होने। अगर कोई मुझे बोले सर मैं 10 साल के बाद जोमेटो का डिलीवरी मैन बनूंगा, तो बोलूंगा बेटा जॉब ही नहीं रहेगा, तू करेगा क्या? आप मेरी बात समझ रहे हो? जब वो जॉब ही नहीं रहेगा तो तू करेगा क्या? उसी हिसाब से आज ये टेक्नोलॉजी अगर हम सीख ले, करियर के बारे में बात बात है, मेरे को याद दिलाना, सब आर्ट्स के भी करियर बताने हैं मुझे, कॉमर्स के बताने हैं और साइंस, पर उससे पहले मैं आपको ये टेक्नोलॉजी बताना चाहता हूं ताकि आप लोगों का दिमाग और खुल जाए। सर ने बताया मैं आईआईटी से हूँ, आईआईटी मद्रास से। आप लोगों को हम लोग, देखो मैं एक बात बताता हूँ, आज के जमाने में बच्चों एक बात याद रखो, आप क्या करते हैं वो इंपॉर्टेंट तो है, कोई कोर्स की बात कर रहा हूं, कौन सा कोर्स करते हो वो इंपॉर्टेंट तो है, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप वो कोर्स कहां से करते हो। बीटेक किया राजकोट यूनिवर्सिटी से या राजकोट से या अहमदाबाद से, तो भी इंजीनियर तो इंजीनियर माना जाएगा, पर वही इंजीनियरिंग अगर आपने आईआईटी से की तो उसका लेवल ही कुछ अलग होता है। आईआईटी आप समझते हो? फुल फॉर्म कौन बताएगा मुझे आईआईटी का? जी प्लीज स्टैंड अप, प्लीज स्टैंड अप, वेरी गुड। क्या आपका नाम बेटा? आफ्ताब। कौन सी स्कूल से हो आप? राजकोट की कॉलेज से, ओके। क्या आईआईटी का फुल फॉर्म बताओ प्लीज, तालियां बजाओ यार इनके लिए, वेरी गुड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा मुझे बताओ कितने आईआईटी के नाम आपको पता है? कोई बता सकता है मुझे? 5 आईआईटी के नाम तो बता दो।
कौन बताएगा? हाँ चलो, वेरी गुड। आफ्ताब, आफ्ताब ना? हाँ बताओ। हाँ हाँ हाँ। दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी खड़गपुर, ये 7 ओल्ड आईआईटीज के बारे में बताए। नए आईआईटीज भी है, वेरी गुड आफ्ताब। फिर से जरा एक ताली बजाओ भाई इनके लिए, ठीक है, वेरी गुड। नए आईआईटीज भी है, जैसे गांधीनगर का जो आईआईटी वो नया आईआईटी। पर ये आईआईटी की बात क्यों नहीं है? चलिए मैं आईआईटी बॉम्बे आपने नाम लिया ना, बराबर, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आईआईटी बॉम्बे में इस साल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में कुछ बच्चे पास हुए, बराबर। देखो, सबसे पहले करियर से पहले सर ने मुझे कहा था, सर इनकी सोच बड़ी करनी है, सोच बड़ी करोगे तो दुनिया क्या आ जाएगी, मुट्ठी में आएगी।